Hello, students. I hope you are doing well. I have come up with another video of class 9th science chapter 2 Cell, the building block of life. With the most important questions of this chapter, I will cover all the MCQs related to this chapter, case study questions, 2 marks, 3 marks question, competency based question and diagram based questions, and also highly expected questions of 2026-27 exam papers. Without wasting time, we'll start with the multiple choice questions along with the answers. See here, the first question: who discovered cell? Cell was discovered by Robert Hooke. Next question: who observed living cells for the first time? The living cells for the first time were seen by Anton van Leeuwenhoek using his simple microscope. We had studied in our video, the explanation video of this chapter. Coming to the next third question, the basic structural and functional unit of life is called as cell. That is the definition of the cell. Cell is nothing but the basic structural and functional unit of life. The fourth question, which of the following is not an organelle? See, options are given to you. Nucleus. Is nucleus not an organelle? No, it is wrong. Nucleus is an organelle which is present inside the cell. Next option, mitochondria. Again, this is an organelle. Cytoplasm. See, cytoplasm, it is not an organelle. Cytoplasm, it is a fluid matrix present in the cell. And in this cytoplasm, what are present? Cell organelles are present in this cytoplasm. So, cytoplasm is not an organelle of the cell. Remember that one. Now coming to the fifth question, the fluid present in a cell is called as, see the above question, again what will be the answer? Fluid present in a cell is called as cytoplasm. Sixth question, which of the following is present in plant cells but absent in animal cells? What is present in plant cells but absent in animal cells? The only difference is the cell wall. Cell wall is absent in animal cell, whereas it is present in the plant cell. Remember, cell wall is outside the plasma membrane. Okay. Seventh question, which organelle is known as the powerhouse of the cell? Powerhouse किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया याद रखो, हमने पढ़ा है हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो में. माइटोकॉन्ड्रिया, it is called as powerhouse of the cell because it generates or it produces energy in the form of ATP molecule. याद रखो, एनर्जी करेंसी बोलते हैं ATP molecule को. एट्थ क्वेश्चन देखो, which pigment is प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्लास्टिड होता है. किधर प्रेजेंट रहता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है. ओके. क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या है? उसमें एक पिगमेंट रहता है विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर ओन फूड इन ऑटोट्रॉफ्स और प्लांट्स. याद रखो, पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. Ninth question, the process of movement of water from higher to lower water concentration through a selectively permeable membrane. ये process को देखो, movement of water को क्या बोलते हैं? osmosis. और एक दूसरा रहता है movement of gases like oxygen and carbon dioxide. That process is called as diffusion. But इधर हमारे question में starting में ही पूछा है process of movement of water. movement of water को ऑस्मोसिस बोलते हैं. नेक्स्ट 10th question, if a plant cell is placed in a hypotonic solution, it will, hypotonic solution मतलब क्या होता है? सेल स्वेल होता है. वाटर from the outside of the cell surrounding will enter inside the cell. याद रखो, hypotonic solution, hypotonic condition में cell will swell. Okay. Next, 11th, the jelly-like substance between the cell membrane and the nucleus is called as cytoplasm. ऊपर ऑलरेडी देखा है हमने फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स या जेली लाइक सब्सटेंस को विद इन द सेल मेम्ब्रेन और
within the cell it is called as cytoplasm, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं प्रेजेंट. ओके, सेल ऑर्गेनल्स दे आर एम्बेडेड इन द cytoplasm of the cell. 12th question, which organelle helps in the synthesis of protein? प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है? राइबोसोम्स. याद रखो, प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है? राइबोसोम्स. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछते हैं, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम. Next, 13th one, which organelle is involved in the formation of lysosomes? Lysosome किधर फॉर्म होता है? गोल्गी apparatus. गोल्गी apparatus क्या करता है? उसका फंक्शन क्या है? फॉर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ दी प्रोटीन्स. ओके, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन. जब ये मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है तभी क्या फॉर्म होता है? इधर लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड. द वेस्ट मटेरियल जो भी है वो क्या फॉर्म हो जाते हैं? दे गेट फॉर्म्ड इनटू लाइजोसोम्स इन द गोल्गी apparatus. याद रखो. 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? ऑप्शंस दिया है. अमीबा. Is amoeba a prokaryotic organism? No. Onion. Onion, it is a plant cell. Again, it is a eukaryotic organism. Bacteria. Yes, bacteria is a prokaryotic organism. Prokaryotic organism का meaning क्या है? Organism which have prokaryotic cells. Prokaryotic cells मतलब क्या है? Undefined nucleus. Nucleus is not defined, not well defined in a prokaryotic cell. याद रखो. Bacteria example. 15th, genetic material is present in. genetic material that is your DNA. chromatin में जो DNA और प्रोटीन्स रहते हैं वो किधर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है genetic material. Okay, now coming to next question, 16th one, which part of the cell controls all the activities of the cell? कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस is the control system. It acts as a brain of the cell. 17th, cell wall is made up of cellulose. याद रखो, cell wall is made up of cellulose. Large central vacuole is present in. large, सब बड़ा सा central vacuole, okay, एक peripheral side में किधर present रहता है? It is present in the plant cell. 19th question, which cell organelle contains its own DNA? Okay, कौन सा ऑर्गेनल कंटेन करता है अपना ओन डीएनए? इधर ऑप्शंस में दिया है लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस. याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी apparatus. अगर गोल्गी apparatus भी दिया है तो ऑप्शन में बोथ ए एंड बी आएगा. ओके, याद रखो, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी apparatus. गोल्गी apparatus अभी इधर नहीं है ऑप्शन में, सो द आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया. Next, the 20th question, the internet of the cell is. internet of the cell किसको बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. कौन सा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. one will help in the synthesis of protein and the another with synthesis of lipid. याद रखो. रफ एंडोप्लाज्म, देखो क्वेश्चन आया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस. यस, इट हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस. याद रखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. 22nd क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली कंसर्न्ड विथ. ऑलरेडी मैंने बोला स्मूथ इट इज कंसर्न्ड विथ लिपिड सिंथेसिस. लिपिड सिंथेसिस करता है, वेयर एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है. नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. 23rd question, which of the following is a plastid? See here, options are chloroplast, mitochondria, lysosome, ribosome. All other are, this chloroplast will be the answer and all other are cell organelles of this cell. Okay, plastid का example कौन से आते हैं? chloroplast, types of plastids है chloroplast, leucoplast and chromoplast. याद रखो, chloroplast. 24th question, chromosomes are made up of. chromosome
किस चीज़ से बनाया है? डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन्स, याद रखो। क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। सेल डिवीजन इज नेसेसरी फॉर व्हाट? डाइजेशन? No. Respiration? No. Photosynthesis? No. These are the life processes. But why the cell division is necessary? Cell division is necessary for growth and repair of the cell. Okay, cell multiplication के लिए help होता है cell division. The two types of cell division you saw, no? Mitosis and meiosis. Remember, next 26th question, which of the following is absent in mature mammalian red blood cells? Okay, red blood cells mature होने के बाद mammals में कौन सा चीज़ है जो एब्सेंट रहता है? इट विल बी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विल बी एब्सेंट इन द मैच्योर्ड रेड ब्लड सेल्स. वाई? बिकॉज इट विल प्रोवाइड space for more oxygen. Note it down. This absence of nucleus in the matured red blood cells will provide space for more oxygen supply. Okay, 27th question. Root hair cells lack chloroplast because option A, they are underground, option B, they do not perform photosynthesis, they have cell wall, they are dead cells. Answer will be they do not perform photosynthesis. Why? Root hair cells, why they lack chloroplast? Because they do not perform photosynthesis. Photosynthesis is prepared by leaves. The green pigment present in the chloroplast कौन परफॉर्म करता है? लीव्स परफॉर्म करता है. तो रूट हेयर सेल में ये क्लोरोप्लास्ट लैक होगा. क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा. नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, विच सोल्यूशन हैज़ मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन? कौन से सोल्यूशन में ज़्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन रहता है? कौन सा है? हाइपोटोनिक, सेल स्वेल होता है. ओके, हाइपोटोनिक में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, याद रखो. 29th, in osmosis water flows from, ऑलरेडी हमें पता है वाटर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, याद रखो. नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखो. सेल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट ओनली सिलेक्ट सर्टन materials to move in and out of this cell, याद रखो. Now coming to next question, 31st, which of the following is not a function of vacuole? vacuole का function कौन सा नहीं है? देखो, A, storage is a function. B, providing shape provide करता है vacuole animal cell, plant cell में. ऑप्शन सी, मेंटेनिंग टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है वैक्यूल. ऑप्शन डी, सेल डिवीजन. नो, सेल डिवीजन ये इसका फंक्शन नहीं है. सेल डिवीजन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, याद रखो. 32nd क्वेश्चन, गोल्गी एपरेटस इज कॉल्ड हैज. गोल्गी एपरेटस को क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. ओके, तो इधर ऑप्शंस में देखो क्या क्या दिया है. पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखो. सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग कौन से होते हैं? लाइजोसोम्स. कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इट विल बी न्यूक्लियस. रिमेंबर दिस वन. Okay, so the Golgi apparatus, it is called as post office of the cell. Sorry, the option is not given here. This option, it will be this one. Okay, it is written wrong. That is option C, post office. It is post office, याद रखो. हाँ, so this option, post office of the cell, will be right. Golgi apparatus is called as post office of the cell. Q, because it transfers, it modifies and it packages the
राइबोसोम्स. ओके, दैट प्रोटीन याद रखो. Now coming to the 33rd question, which of the following is not a function of lysosome? कौन सा function नहीं है? देखो, digestion of food, it will perform this function. Destruction of worn out cells, dead cells को क्या डिस्ट्रक्ट करता है? येस, इट विल हेल्प इन डिस्ट्रक्शन. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नो. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. याद रखो, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज डन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सो दिस विल बी द आंसर. दैट इज, this is not a function of the lysosome. See the option D, killing of germs. Again, this is a function performed by lysosome only. Now coming to the 34th question, cells of which tissues are dead at maturity? कौन से टिश्यू का सेल डेड रहता है मैच्योरिटी में? इट इज स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज चैप्टर में पढ़ोगे. स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी. ओके, रिमेंबर दैट. 35th question, which of the following is a unicellular organism? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? अमीबा. याद रखो, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ओके, यूनिसेलुलर का मीनिंग क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. एक ही सेल रहता है और एक ही सेल सारा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है. दैट इज डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड बाय single cell. It is a single celled organism. याद रखो, amoeba. Now 36th question, in which of the following is the cell wall present? We already know cell wall is present in plant cell. याद रखो. Coming to 37th question, which organelle helps in cellular respiration? Cellular respiration, okay, energy चाहिए ना. Energy is produced in the form of ATP molecule. कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं एंड इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन. याद रखो ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a membrane bound organelle? membrane bound organelle मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनल membrane bound रहता है? राइबोसोम. yes, it is a membrane bound organelle. mitochondria, again it is a membrane bound organelle. lysosome, yes, again this is also the answer for membrane bound organelle. so the answer will be all of these. all of these are membrane bound organelles. 39 question, which part of the cell is present in both plant and animal cell? Cell wall, no. cell wall is present only in plant cell. सिर्फ plant cell में है. chloroplast, no, because again it is present only in plant cell. okay, nucleus, it is present in both the plant and animal cell. and option D is also wrong. large central vacuole, again it is present in plant cell. याद रखो ये वाला. nucleus is present both in plant and as well as animal cell. 40th question, which of the following provides strength and support to plant cell? एक ही याद रखो, कौन प्रोवाइड करता है strength and support to plant cell? cell wall. cell wall प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन वैक्यूल? वैक्यूल में क्या स्टोर्ड रहता है? व्हाट विल बी स्टोर्ड? सेल सैप. याद रखो, एक फंक्शन है. वैक्यूल स्टोर्स सेल सैप. याद रखो. नेक्स्ट, प्लास्मोलाइसिस occurs when a cell is placed in. प्लास्मोलाइसिस कब होता है? when it is placed in a hypertonic solution. hypertonic मतलब क्या होता है? cell will shrink. cell will shrink. समझ में आया? water will move from inside of the cell to outside. water क्या होता है? इधर से water outside move होता है. प्लास्मोलाइसिस में water will move from inside the cell to outside region and cell will shrink. hypertonic solution, इसमें क्या होता है? प्लास्मोलाइसिस प्रोसेस टेक प्लेस होता है. कमिंग टू
43rd question, which scientist proposed cell theory? देखो रॉबर्ट हुक, नो, ही जस्ट डिस्कवर्ड दिस सेल, ये नहीं है. स्कैवन ने दिया है सेल थियरी, यस, क्लेडन एंड स्कैवन बोथ है एक्चुअली, बोथ क्लेडन एंड स्कैवन. ओके, ये नहीं है, लुइस पैस्चर नहीं है. सो बोथ ऑप्शन बी एंड सी, बोथ प्रपोज्ड सेल थियरी, याद रखो, स्क्लेडन एंड स्कैवन. क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, बोथ बी एंड सी रहना चाहिए था. नेक्स्ट, the smallest known cells are seen in bacteria. Okay, ये नहीं है. Animals they are eukaryotic organisms, plants are eukaryotic, fungi are eukaryotic. तो smallest कौन सा है इसमें? Bacteria. 45 question देखो, ATP is what? ATP is the energy currency. ATP is the energy currency. किधर प्रोड्यूस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, remember ATP, it is called as energy currency of the cell. These were your MCQs. Now coming to next set, that is assertion reason based question. See, before proceeding we will see the direction. In this question two statements are given. The first statement will be assertion and the second statement will be reason, and you have to choose the option from these A, B, C, D. What is the option A? Option A says that both A and R, that is assertion and reason, both statements are true and R is the correct explanation of A. Reason will be the correct explanation for assertion. Option B says that both assertion and reason are true. Both the statements are true, but reason is not the correct explanation for the assertion. Option C says A is true, assertion is true, but reason is false. Okay, and option D, that is the last option, it says that assertion is false but the reason is true. समझ में आया? तो ये 4 ऑप्शंस में तुम्हें आंसर चूज करना पड़ेगा आगे क्वेश्चंस के लिए. विल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन. देखो, स्टार्ट करते हैं. असर्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, असर्शन स्टेटमेंट क्या है देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का. द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यस, ट्रू, यही तो सेल का डेफिनेशन है. रीजन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. हाँ, ये भी करेक्ट है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ statements assertion and reason are true and R is also the correct explanation of A. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा. ऑप्शन ए, आर रीजन करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन ही है असर्शन का. सेकेंड क्वेश्चन, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. देखो, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर, यस इट इज ट्रू. रीजन, इट अकर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. सो आंसर अगेन it will be A, याद रखो. Coming to third question, assertion क्या बोलता है? Plant cells have a cell wall. True, plant cells it has a cell wall. Reason क्या है? Cell wall provides shape, support and protection to the cell. Yes, 100%. Cell wall का function it वो है that it will provide shape, support and protection to the cell. So both A and R are true and R is the correct explanation of assertion. Option will be again A. Fourth question, assertion says animal cells do not have chloroplast. Yes, true. Animal cells they do not have chloroplast. We know that. Reason, animals cannot prepare their own food. Yes, chloroplast नहीं है तो असर क्या होगा? Animals they cannot prepare their own food. So again both the statements are correct and reason is the correct explanation. So again your answer will be A. See, fifth question. Here, assertion says mitochondria are called as powerhouse of this cell. Yes, true. We know that. Okay, and
What reason says? They produce ATP, the energy currency. Correct, true. Both assertion and reason again they are true, and R is the correct explanation of A. So option will be A. Sixth question, assertion. The plasma membrane is selectively permeable membrane. Yes, we know that plasma membrane is selectively permeable membrane. Reason, it allows only selected substance. Yes, selectively permeable membrane बोलते ही क्यों है उसको? क्योंकि it will select only the substances which have to move in and out of this cell. तो again दोनों assertion और reason true है, and R is the correct explanation. Option A होगा. Seventh question, assertion says vacuoles are larger in plant cells than in animal cells. हाँ ना, वैक्यूल्स लार्जर होते हैं ना प्लांट सेल्स में देन इन एनिमल सेल्स. ये ट्रू है स्टेटमेंट. रीज़न क्या है इसका? वैक्यूल स्टोर सेल सैप एंड मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट सेल. क्यों बड़ा रहता है? क्योंकि इसका फंक्शन क्या है? इट विल स्टोर सेल सैप एंड मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट सेल्स. इसका रीज़न है, वैक्यूल्स का रीज़न है, इसीलिए ये लार्जर रहते हैं प्लांट सेल्स में. अगेन बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Coming to 8th question, देखो assertion क्या है? Ribosomes are the site of protein synthesis. Yes, ribosome protein synthesis में help करता है. Reason, they are called protein factories. They are called protein factories. Again, yes, option A क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज कौन है? राइबोसोम्स है. यही तो ऊपर दिया है असर्शन में. क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज. क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. इट इज़ अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Ninth question, assertion. Diffusion is faster in gases than in liquids and solids. Yes, true. Diffusion it will be faster in gases. Gases में ज़्यादा रहता है. Then comes to liquids, then to your solid. Okay. क्यों? क्योंकि gases में इधर molecules इधर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, एक साथ जॉइंट नहीं रहते हैं. ओके, इसीलिए डिफ्यूजन फास्टर रहता है. वेरएज लिक्विड में क्या होता है? ऐसे रहते हैं मॉलिक्यूल, स्पेस कम रहता है. और सॉलिड में दीज मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, इधर स्पेस नहीं रहता है. तो इधर डिफ्यूजन थोड़ा कम रहेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रहेगा. तो गैसेस में डिफ्यूजन ज़्यादा है एज कंपैरेटिव टू योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. याद रखो हियर. तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार्दर अपार्ट एंड मूव फ्रीली. यस, दिस इज द करेक्ट रीज़न. गैसेस का पार्टिकल्स जो है क्या रहता है? दे आर farther apart and they move freely. Okay, they will be distorted. इसीलिए diffusion faster है. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 10th question, assertion says root hair cells have large vacuole. Okay, here root hair cells it will say it has large vacuole. रूट हेयर मतलब क्या है? प्लांट सेल्स है. प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल रहता है, वी नो. नाउ कमिंग टू ये प्लांट सेल है. I will write here. See, this is plant cell. Reason says it helps in absorption of water and minerals. What is the reason? It helps in absorption of water and minerals. Yes, this is also true. Both assertion and reason are true. See, and reason is the correct explanation, being the here root hair cells having large vacuole. इधर option wrong है. Option answer should be A. Answer should be A. याद रखो. Answer is A and reason is the correct explanation. ये wrong है, इधर wrong लिखा है. Reason is the correct explanation of assertion. याद रखो. I will just correct this in my description box. Okay. Now coming to next questions of assertion and reason. 11th question of assertion and reason says assertion statement. Golgi apparatus modifies packages and transport proteins. Yes, 100% true. We know that. Reason is it helps in the formation of lysosomes. ये reason है क्या? No. Okay. Reason correct है. That
statement is correct. Golgi apparatus helps in formation of lysosome, but ये इसका reason इसका नहीं है. Reason is not true here. So what will be the answer? Both the statements are true, but reason is not the correct explanation of assertion. देखो option will be answer. Option will be B. Next, 12th question. Assertion statement. Chloroplast contains chlorophyll. Yes, chloroplast contains the pigment chlorophyll, green color pigment. Reason, chlorophyll helps in the process of photosynthesis. Yes, true. We know that chlorophyll, it helps in the process of photosynthesis to prepare its own food for autotrophs, and this is the correct reason. We know. Okay, so answer will be option A. 13th question. Assertion. Prokaryotic cells do not have a definite nucleus. 100% true. We know that the nucleus is not well defined. Reasons is they lack membrane bound organelles. What? Here, why definite nucleus is it doesn't have prokaryotic cell? Because it lack membrane bound organelles. This is also true, and this reason is the correct explanation for the assertion. So answer will be option A again. Okay, coming to the next part, 14th question. देखो, cell division is essential for growth. Yes, हाँ, सेल डिवीजन क्यों होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स के लिए होता है. रीजन, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स. इंक्रीज कर रहा है ना नंबर ऑफ सेल. ट्रू है, एंड ये इसका रीजन है 100%. तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन ए. 15th question. Bacteria are unicellular organisms. Bacteria are unicellular organisms. Sorry. Yes, bacteria are unicellular organisms. Remember, bacteria are unicellular organisms. Reason, they are made up of many cells. No, reason is false. Bacteria are not made up of many cells. तो इसका आंसर क्या होगा? Only option C होगा. Only assertion is true, but what? Reason is false. Again ये wrong है, इधर आंसर wrong दिया है. Answer is C. Answer is option C. 16th question. Assertion. Eukaryotic cells have a true nucleus. ट्रू न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल में. येस, वी नो दैट इट हैज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. नेक्स्ट, द जेनेटिक मटीरियल. हाँ, जेनेटिक मटीरियल मतलब डीएनए. इट इज़ एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है तो जेनेटिक मटीरियल किसके अंदर रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा ना. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट ए. दैट मीन्स ऑप्शन ए. आंसर इज ऑप्शन ए. Now, 17th question. Assertion. Water moves in a cell into a cell in a hypotonic solution. Yes, water moves inside the cell hypotonic solution में. इसके वजह से swell होता है. तो water concentration is higher outside the cell? No, water concentration higher outside the cell नहीं होगा. Assertion is true but reason is false. Option क्या होगा? C होगा. याद रखो, water concentration किधर high रहेगा? inside the cell. water किधर मूव हुआ है? सेल के अंदर मूव हुआ है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में. ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन. असर्शन. रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमंस लैक अ न्यूक्लियस व्हेन मैच्योर. रेड ब्लड सेल्स लैक, हाँ ये हमने ऊपर पढ़ा था एमसीक्यू में. ये न्यूक्लियस लैक करता है व्हेन दे आर मैच्योर रेड ब्लड सेल्स. ओके, क्या रीज़न क्या है? बिकॉज इट विल प्रोवाइड मोर स्पेस टू द हेमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन. बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड योर आंसर विल बी ए. And reason is the correct explanation for assertion. 19th question. Endoplasmic reticulum helps in transport of materials. True, yes. Endoplasmic reticulum helps in transport of materials. It is present only in plant cells? No, it is not present in only in plant cells. It is also present in animal cells. याद रखो, animal cells में भी present है. तो reason wrong रहेगा. Whereas
ऑप्शन ये असर्शन ट्रू रहेगा, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी. आंसर विल बी ऑप्शन सी. नाउ 20th, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रीजन एंड असर्शन. असर्शन ये बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दे हैव देयर ओन डीएनए. याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दे हैव देयर ओन डीएनए. रीजन, दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स. यस, दे आर सेमी ऑटोनोमस. ये खुद का ही इसमें डीएनए रहता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं. यही उसका परफेक्ट रीजन है. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन A. Okay, both the statements are true and reason is the correct explanation for the assertion. याद रखो. These were set of 20 questions of assertion and reason. देखो, okay, go through it again. I have covered from each and every topic of this chapter. Assertion, reason question. Now coming to 2 marks question. See, 2 mark question I have given along with the answer. We will just do it quickly. See, the first question, define a cell. It is the basic structural and functional unit of life. And why it is called as basic structural and functional unit of life? Because it performs all the life processes needed for a living organism. Second question, difference between diffusion and osmosis. इधर दिया है, diffusion क्या होता है? Movement of particles from a concentration of higher to lower region. और इधर movement of water molecules है, okay, through a selectively permeable membrane. बाकी सेम है. नेक्स्ट, इट कैन अकर थ्रू एनी मीडियम. डिफ्यूजन तीनों मीडियम में होता है, वेर एज इधर ये तीनों मीडियम में होता है, वेर एज ये सिर्फ लिक्विड में होता है, वाटर. हियर नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, वेर एज इधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड. याद रखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिमेंबर दिस वन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस डिफरेंस कंपैरिजन. थर्ड क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक तो ये प्रोटेक्ट करता है सेल को उसके सराउंडिंग से. नेक्स्ट है, इट विल हेल्प इन रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ दिस सेल. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट विल ओनली सिलेक्ट सर्टन सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट ऑफ दिस सेल, ओके, एंड इट विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट द एग्जिट एंड एंट्री फॉर अदर सब्सटेंसेस. फिफ्थ, मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है, एनिमल सेल में दे डू नॉट हैव द सेल वॉल. सेकेंड डिफरेंस देखो, प्लांट सेल इट हैज़ अ सेंट्रल बिग लार्ज वैक्यूल, वेर एज एनिमल सेल इट हैज़ स्मॉल और नो वैक्यूल्स. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इट हैव क्लोरोप्लास्ट, वेर एज इट डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल फॉर 2 मार्क्स. अगर 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो तुम्हें 4 to 5 डिफरेंसेस लिखना पड़ेगा. ये 2 मार्क्स के लिए 3 डिफरेंसेस लिखा है मैंने. सी द मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स, राइट द पॉइंट्स. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. हमें ऑलरेडी पता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है और इनके फंक्शन लिखा है. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस. क्रोमोप्लास्ट में इट विल गिव कलर टू द प्लांट पार्ट्स लाइक फ्लावर एंड ऑल, लीफ. ओके, ल्यूकोप्लास्ट इट विल हेल्प इन स्टोरिंग फूड एंड इट इज कलरलेस. Seventh, what is cytoplasm? Cytoplasm, it is a jelly-like substance present inside the cell membrane. And state any one of its function. It will try to embed all the cell organelles in one place inside the cell. याद रखो. नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, वाई इज द न्यूक्लियस कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ दिस सेल. इसको क्यों कंट्रोल सेंटर बोलते हैं? बिकॉज इट विल ट्राई टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेल एंड इट हैज़ the genetic material present inside it. 9th, mention any 2 functions of mitochondria. 2 फंक्शन क्या है? एक तो ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. सेकेंड फंक्शन इसका ये होता है कि इट प्रोड्यूसेस ATP मॉलिक्यूल, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल. याद रखो. 10th, स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स. वैक्यूल क्या करता है? इट विल हेल्प इन स्टोरिंग वाटर, फूड एंड वेस्ट मटीरियल एंड इट विल मेंटेन टर्जिडिटी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल.
11th, what are chromosomes? Chromosomes are thread-like structures made up of DNA and proteins. किधर found है? Nucleus में. Mention their importance. क्या है इसका importance? इसका function क्या है? It carries genes and transmit it from one character, that is one generation to another generation. 12th question, differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. Again important question, I have given in tabular form. Go through my notes. I will add the explanation of these notes, this link in the description box. See, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड है, प्रोकैरियोटिक नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इधर नॉट वेल डिफाइंड. नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में, एंड यूकैरियोटिक में हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ओके, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? मेंशन एनी टू फंक्शंस. सेल वॉल क्या करता है? इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, एंड इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड बर्स्टिंग आउट. 14th, व्हाई डू प्लांट सेल्स पोसेस अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल? Why this plant cell it possesses large vacuole? रीजन क्या है इसका? इट स्टोर्स, देखो, इट स्टोर्स सेल सैप, मेंटेन्स टर्जिडिटी एंड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ सेल. Okay, it stores cell sap, maintains turgidity and helps in growth of cell. State any two functions of Golgi apparatus. State any two function of Golgi apparatus. एक क्या है? Modifies, packages, transports protein, helps in formation of lysosomes. Next 16th question, mention any two functions of the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल. और इसके दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स होते हैं, आरईआर और एससीआर. आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, एससीआर लिपिड सिंथेसिस के लिए होता है. ये दो फंक्शंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. 17th क्वेश्चन, वाई आर राइजोसोम्स कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज? क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. याद रखो. ओके, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. Now, coming to 18th question, difference between RER and SER. RER और SER का डिफरेंस क्या है? इसमें राइबोसोम्स होते हैं अपने सरफेस में, ऑन द सरफेस, whereas this does not have राइबोसोम्स ऑन द सरफेस. एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है RER, और दूसरा क्या करता है? लिपिड सिंथेसाइज करता है. याद रखो. अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. 19th question, name the scientist who discovered cell. We know Robert Hooke, and living cells Antony van Leeuwenhoek. 20th, what is cell division? Cell division एक ऐसा प्रोसेस है in which parent cell will get divided into two और मोर डॉटर सेल्स. इसको माइटोसिस बोलते हैं. और दूसरा होता है मियोसिस, जिसमें दो सेल फॉर्म होके फर्दर और दो सेल फॉर्म होते हैं. 4 अनआइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म होते हैं. इसको मियोसिस बोलते हैं. याद रखो. दिस इज मियोसिस एंड दिस इज माइटोसिस. ये दो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होता है. ओके, सी along with this question I am just doing a quick revision for you from this chapter. These all are important questions. Okay, 21st question, again difference between unicellular and multicellular. यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड होता है, मल्टीसेलुलर मल्टीपल सेल्स होते हैं. यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल और मल्टीसेलुलर के और एग्जाम्पल्स दे दो. 22nd, व्हाट आर लाइजोसोम्स? लाइजोसोम्स क्या होते हैं? लाइजोसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स. क्या है? स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम. ओके, दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ दैट गोल्गी apparatus. याद रखो. इसके दो फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ वोन आउट सेल पार्ट्स एंड जर्म्स. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स बोलते हैं. दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स. They are called as suicidal bags of the cell. याद रखो. Next 23rd question, why do root cell lack chloroplast? क्यों? Because roots they do not receive sunlight and they do not carry out photosynthesis. यही उसका रीज़न है. Okay,
Coming to 24th question, why do animal cells do not have a cell wall? क्यों? Because cells need flexibility for movement के लिए flexibility चाहिए, तो इसीलिए cell wall present नहीं है animal cell में. 25th question, difference between cell wall and plasma membrane. Cell wall, it is present in plant cells, plasma membrane is present both in plant cell and animal cell. ये first difference हो सकता है. Next, outermost rigid layer होता है plant cell का cell wall, whereas plasma membrane, it is thin, flexible and living structure. If cell wall freely permeable रहता है, whereas plasma membrane selectively permeable membrane होता है. नेक्स्ट कमिंग टू व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस तुम लोगों को पता है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. एक एग्जाम्पल डेली लाइफ से इधर स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स. रेजिन्स मतलब किशमिश, ओके, जो रहता है घर में, जब तुम लोग सोक करके रखते हो रात में, वो क्या होता है, ड्राई ग्रेप्स बोलते हैं ना हम लोग, वो क्या होता है, जब सुबह उठ के देखोगे वो क्या हुआ रहता है, स्वेल हुआ रहता है, ओके, मोटा हुआ रहता है, पानी उसके अंदर चला जाता है. दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल. वन क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द केस स्टडी ऑल्सो. आई विल शो यू, okay, when we will do that case study based question. Now coming to the next question, 27th, state any two characteristics of the plasma membrane. एक तो ये thin है, next is it is flexible and it is also selectively permeable membrane. 28th, what is the role of chloroplast in plant cell? Chloroplast, it contains chlorophyll and helps in photosynthesis. Okay. 29th question, name the organelle responsible for protein synthesis. Protein synthesis बहुत important है, again important. Protein synthesis by ribosomes and cellular respiration by mitochondria. Energy house, power house बोलते हैं इसको, energy produce करता है. 30th question, why do muscle cell contain more mitochondria than fat cells? More mitochondria रहता है muscle cells में. क्यों? Because it requires more energy for contraction of the movement in the muscles. Okay, याद रखो. These here competency based question for 2 marks. See, resin swell इधर ही दिया है, देखो इधर ही, resin swell when placed in water, ऊपर वाला एग्जाम्पल. नेम द प्रोसेस. प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं इसको. वाटर एंटर होता है रेजिन्स के अंदर एंड कॉजिंग देम टू स्वेल, याद रखो. 32nd क्वेश्चन, ओके, दिस आर लाइक योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन है. ऑनियन पील सेल्स अपीयर रेक्टेंगुलर वेयर एज चीक सेल्स अपीयर इरेगुलर. क्यों? बिकॉज ऑनियन पील सेल्स ये प्लांट सेल्स होते हैं जिसके अंदर एक रिजिड सेल वॉल रहता है, रिजिड सेल वॉल रहता है विच गिव देम फिक्स्ड शेप. whereas cheek cells, they are animal cell and they do not have cell wall, so they are irregular in shape. याद रखो, ये इसका रीज़न है. 33rd question, a plant kept in darkness becomes weak after a few days. Which organelle is affected and why? क्या है इसका रीज़न? क्लोरोप्लास्ट इज अफेक्टेड. ओके, जब डार्कनेस में रखते हो कौन सा ऑर्गेनल को ये अफेक्ट करेगा? दैट इज क्लोरोप्लास्ट. ये इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. जब इसको डार्कनेस में रखते हैं ये अफेक्ट होगा एंड फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर, सो फूड विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड द प्लांट विल बिकम वीक. याद रखो ये वाला. Coming to 34th question, why do plant cells not burst when placed in distilled water? Because the cell wall, it provides support and prevents the cell from bursting even when water enters by osmosis. याद रखो. Okay, plant cell they do not burst क्योंकि इसमें cell wall रहता है. 35th, the student observed bacteria under a microscope. Why are bacteria called prokaryotic organism? Because they do not have a true nucleus. Prokaryotic क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है, एंड जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं रहता है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो कैसे रहते हैं? बाहर ही रहते हैं. ओके, न्यूक्लियोलस में ही रहता है ऐसे. So student observed bacteria under a microscope and here bacteria it was
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन लिखना है तुम्हें। 36 वाई आर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल? बिकॉज एनिमल सेल्स दे कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉफ्स है, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स, याद रखो, एंड अदर हेटेरोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड, सो दे डू नॉट नीड क्लोरोप्लास्ट। 37 वाई डू मैच्योर रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन लैक अ न्यूक्लियस? ऑलरेडी ऊपर हमने MCQ में पढ़ा था, बिकॉज इट provides a space for more space for hemoglobin to carry the oxygen. 38 state two advantages of having membrane bound organelles in eukaryotic cell. इसके जो दो एडवांटेजेस है कौन से होते हैं? दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एफिशिएंटली, एक एक स्पेसिफिक फंक्शन एक एक ऑर्गेनल्स क्या करता है? परफॉर्म करता है। जैसे कि तुम्हारा गोल्गी एपेरेटस क्या करता है? मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ राइबोसोम्स करता है, वेयर एज राइबोसोम वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल, DNA एंड प्रोटीन के फॉर्म में रहता है, क्रोमोसोम्स बोलते हैं हम लोग। तो हर एक ऑर्गेनल अपना ओन क्या करता है? टास्क परफॉर्म करता है, एंड दे प्रोटेक्ट डेलिकेट रिएक्शंस फ्रॉम इंटरफियरिंग विथ अदर फंक्शंस। हर एक ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन रहता है, ओके, एंड दे डू नॉट इंटरफियर विथ अदर फंक्शंस। 39th क्वेश्चन, नेम एनी टू ऑर्गेनल्स दैट पोसेस देयर ओन DNA। दो ऑर्गेनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ऑर्गेनल्स कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दे बोथ पोसेस देयर ओन DNA, याद रखो। नेक्स्ट, Why is ATP called as energy currency? Energy currency क्यों बोलते हैं? It stores and transfers energy required for various cellular activities. It stores and transfers energy required for various cellular activities. Respiration के लिए, okay? These were the 40 questions, set of 40 questions from 2 marks. They were 2 mark question. Now coming to 3 marks question. Okay, 3 mark question में देखो कौन से है। फर्स्ट आता है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ये तुम्हारा वेल लेबल नीट डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल दिया है, ऑलरेडी टेबुलर कॉलम में दिया है, मैंने ऊपर दिया है कंपैरिजन। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनी 3 सेल ऑर्गेनल्स, कौन से भी सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस तुम लोग बता सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू find out the answers for these questions. I have not given the answers here. Third, explain the structure and functions of plasma membrane. Already हमने पढ़ा 2 marks question में. Fourth, difference between prokaryotic and eukaryotic. एक में well defined nucleus रहता है, दूसरे में undefined nucleus रहता है. Okay, on the basis of any 3 points, 3 differences लिखना है. Fifth question, explain the structure and function of the nucleus. Nucleus का structure and function लिखना है. Nucleus में nucleolus रहता है, chromatin रहता है, chromatin genetic material होता है, made up of DNA and protein. ये उसके फंक्शंस लिखना है तुम लोगों को, इधर एक्सप्लेन करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6th, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस बोलते हैं, ATP जनरेट होता है इधर। वाई आर दे कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? ATP जनरेट होता है। 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER एंड SCR. Please try to find out the answers for these questions. They are 3 marks question. Okay, write up to the point. अच्छे से well neatly define करो क्या है आंसर, अच्छे से अप टू द पॉइंट प्रिसाइसली आंसर लिखो। ओके, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिस्क्राइब करोगे तो कोई पढ़ने वाला नहीं है एग्ज़ाम में, याद रखो। अप टू द पॉइंट इन अ प्रिसाइज्ड वे लिखो। यू कैन जस्ट रेफर माई नोट्स, the explanation notes link I will just provide it in the description box. Go through that link, go through that video. 8th question, explain the structure and function of the Golgi apparatus. इसका भी आंसर मैंने दिया है। Coming to 9th question, what are plastids? Explain the 3 types of plastid, chloroplast, chromoplast, leucoplast. और
हर एक का एक एक फंक्शन लिखना है। 10th एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विद द हेल्प्स ऑफ रेजिन एक्सपेरिमेंट। ऊपर देखा ना रेजिन एक्सपेरिमेंट, नीचे भी एक केस स्टडी क्वेश्चन है इसके बेसिस पे। 11th एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विद 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। ओके, डेली लाइफ का 2 एग्जाम्पल लेके प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन तुम्हें एक्सप्लेन करना है। 12th डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। 13th एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। क्यों इम्पॉर्टेंस क्या है इसका एक्सप्लेन करना है। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, वो 2 माइटोसिस मियोसिस वो एक्सप्लेन करना है। 14th क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। 15th एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ये। स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो इसका एंड स्टेट वाई दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। 15 क्वेश्चन हुआ। 16th कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन है। स्टूडेंट ऑब्जर्व ऑनियन पील सेल्स एंड चीक सेल्स। एक होता है प्लांट सेल, दूसरा होता है एक होता है प्लांट सेल, दूसरा होता है एनिमल सेल। ओके, अंडर अ माइक्रोस्कोप कंपेयर मतलब क्या है, तुम्हें डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सेल वॉल, वैक्यूल। 17th ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट प्लेस रेजिन्स इन वाटर। रेजिन उसने वाटर में डाला एंड लेटर उसको कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डाला। ये तुम्हारा पोटैटो वाला एक्टिविटी 2.2 टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी न्यू रिवाइज्ड सिलेबस चैप्टर नंबर 2 एक्टिविटी 2.2 एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। वही सेम एक्टिविटी है, पोटैटो के बदले में रेजिन्स डाला है उसने, उतना ही, और सॉल्ट सॉल्यूशन के बदले में शुगर सॉल्यूशन लिया है। नेक्स्ट 18th अ प्लांट was kept in darkness for 1 week. Explain the effect of chloroplast and process affected. 2 marks question में भी ये सेम देखा था हमने। 19th a patient suffers from muscle weakness due to defective mitochondria. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया उसका डिफेक्टिव है तो क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया वीक रहेगा, मसल भी उसके वजह से वीक हो जाएगा। एक्सप्लेन वाई दिस हैपन्स एंड स्टेट टू फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 2 फंक्शन लिखो माइटोकॉन्ड्रिया का और ये इसका रीज़न लिखो क्यों ये पेशेंट सफ़र कर रहा है करके। Now 20th question why do plant cells not burst when placed in distilled water। क्योंकि सेल वॉल है उसमें, whereas एनिमल सेल्स में burst क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। एक्सप्लेन द रीज़न, ये रीज़न तुम्हें एक्सप्लेन करना है। 21st एक्सप्लेन हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट प्लांट सेल्स। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेएबल रहता है, सेल वॉल फिजिबली परमेएबल मेम्ब्रेन रहता है। ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है दोनों प्लांट सेल्स में। 22nd क्वेश्चन वाई आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनल हर एक अपना टास्क परफॉर्म करता है एंड दे हेल्प इन लाइफ प्रोसेसेस। याद रखो ये वाला। एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। तुम लोग कौन सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, गोल्गी एपेरेटस हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, कौन सा भी लाइजोसोम्स है, न्यूक्लियस है, ये सभी का एग्जाम्पल्स तुम लोग दे सकते हो इधर विथ एक्सप्लेनेशन। एनी 2। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 mark will be for the first part and 2 marks will be for the explanation with suitable examples. 23rd differentiate between diffusion and osmosis। ऊपर भी हमने 2 marks question में देखा था ये वाला part। 24th question explain the role of chloroplast, mitochondria and ribosome in the functioning ऑफ अ सेल। हर एक का फंक्शन तुम्हें लिखना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम इट्स सिंथेसिस टू सेक्रीशन विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, राइबोसोम्स में होता है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपेरेटस में जाता है। देखो फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस किधर होता है, राइबोसोम से किधर जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किधर जाता है, गोल्गी एपेरेटस। ये सभी एक्सप्लेनेशन देना है तुम्हें इन अ सिंगल फ्लो। ओके, ऐसे लिख के फ्लो चार्ट लिख के तुम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो हर एक ऑर्गेनल का। नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड 3 मार्क्स क्वेश्चन दिया है मैंने। ड्रॉ लेबल
वेल लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, इधर मैंने ड्रॉ किया है, देखो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एनिमल सेल का भी आ सकता है सिमिलर वे में. 28th क्वेश्चन देखो, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल एंड आंसर. इधर आइडेंटिफाई एक सेल ऑर्गेनल पूछेंगे. जो ब्लू कलर मार्क किया है ये क्या है? वैक्यूल है. व्हाट इज दैट? वैक्यूल. वैक्यूल. मेंशन वन ऑफ इट्स फंक्शन. नेम अनदर ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. ये अनदर ऑर्गेनल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट. याद रखो. ऐसे पार्ट्स में क्वेश्चंस देंगे. 1 मार्क इसको, 1 मार्क इसको, 1 मार्क इसको, टोटल 3 मार्क्स क्वेश्चंस हो जाएगा. ये समझ में आया? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को. नाउ कमिंग टू अदर पार्ट. 29th, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड आंसर. नेम द फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन. क्या है इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? विच प्रोसेस अकर्स हियर. इधर क्या प्रोसेस होता है? एनर्जी जनरेशन. एनर्जी प्रोड्यूस होता है. वाई इज ATP इम्पॉर्टेंट? ये एनर्जी करेंसी होता है. ओके. नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड आंसर. नेम द ग्रीन पिगमेंट. क्लोरोफिल होता है. स्टेट द प्रोसेस टेकिंग प्लेस. इधर कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस. आई विल राइट हियर. क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट. ये फोटोसिंथेसिस है. Photosynthesis. Mention one importance of this process. It helps in preparation of its own food in plants. Okay, ये याद रखो. These were your 3 marks questions. Go through it again. Now coming to diagram based questions with answers. मैंने answers भी mention किया इधर. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है. इधर एक प्लांट सेल का डायग्राम दिया है. आइडेंटिफाई करना है तुम्हें. ले पार्ट्स लेबल्ड फ्रॉम A to G. आंसर दिया है मैंने नीचे A to G कौन से पार्ट्स है. क्वेश्चन बी, नेम एनी 3 पार्ट्स एंड स्टेट 1 फंक्शंस. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. ये केस बेस्ड क्वेश्चन है. ऊपर भी हमने देखा था ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. क्वेश्चन सी है, विच पार्ट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. सेल वॉल बोल सकते हो तुम लोग. ओके, सेल वॉल ये है तुम्हारा. नेक्स्ट सेम टाइप में एक एनिमल सेल का क्वेश्चन है. एनिमल सेल का क्वेश्चन है. इधर देखो सेम क्वेश्चन, सेम सिमिलर वे में प्लांट सेल जैसे दिया है, एनिमल सेल का भी सेम क्वेश्चन दिया है. इसको तुम लोग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बोल सकते हो. दिस इज योर व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट. वो ऊपर वाला पार्ट को क्रिस्टे बोलते हैं. इधर ऊपर भी पूछा था ना, ये पार्ट को क्रिस्टे बोलते हैं. इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन. इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन ये वाला. ओके, बी पार्ट. See this 4th question. This is based on chloroplast. ओके, हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया है. हर एक टॉपिक, हर एक सेल ऑर्गेनल के ऊपर मैंने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लिया है. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट द क्वेश्चंस along with the answers. I have also written the answers also. This is the 5th question. ये रेजिन वाला ऊपर एग्जाम्पल में पूछा था ना, रेजिन वाला, ये इम्पॉर्टेंट है. ओके, ये पूछते हैं ज़्यादातर. पोटैटो, जैसे कि तुम्हारा एक्टिविटी 2.2 में पोटैटो लिया है वो लोगों ने, सेम रेजिन वाला क्वेश्चन है. समझ में आया? आंसर भी दिया है मैंने नीचे. ये 6th वन, इट इज़ बेस्ड ऑन योर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ओके, ऑनियन पील सेल प्लांट सेल होता है, चीक सेल एनिमल सेल होता है. इसके ऊपर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है. ओके, विच हैज सेल वॉल. प्लांट सेल होता है ऑब्वियसली. वाई इज द ऑनियन पील सेल रेक्टेंगुलर इन शेप. क्यों? बिकॉज इट गिव्स देम अ फिक्स्ड, दिस सेल वॉल गिव्स देम अ फिक्स्ड शेप. ये याद रखो. एंड वाई इज द चीक सेल इरेगुलर इन शेप? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन सेल वॉल. ये वाला सेम टाइप में क्वेश्चन है. इधर मैंने बैक्टीरियल सेल दिया है, प्रोकैरियोटिक सेल. हियर प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. दे कैन बी 3 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, मेनली 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछते हैं.
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं हम लोग इसको. 8th क्वेश्चन, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के बेसिस पे दिया है, देखो मैंने. ओके, एक सेल डिवाइड हो रहा है, तो नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन शोन हियर. कौन सा सेल डिवीजन शो हो रहा है इधर? माइटोसिस. व्हाट इज फॉर्म्ड इन द स्टेज 3. स्टेज 3 में क्या होता है? सेल प्लेट बोलते हैं उसको. ओके, सेल स्टेज 4 में कितने डॉटर सेल फॉर्म हुए हैं? इधर 2 डॉटर सेल्स. एंड इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड रिप्रोडक्शन. याद रखो. Ninth question, it is again based on your animal cell. Just go through the questions and the answers. So these were your diagram based question. See here, 10th question. डिफ्यूजन वाला टॉपिक है. ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट प्रोसेस इज शोन हियर? दिस इज डिफ्यूजन. नेम द सब्सटेंसेस यूज्ड हियर. पोटेशियम पर मैग्नेट. स्टार्टिंग में दिया है क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट करके. ओके, नेम द सब्सटेंस यूज्ड हुआ पोटेशियम पर मैंगनेट. वॉट हैपन्स टू द कलर एज टाइम पासेस. कलर क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है. जो छोटा सा कलर था इधर देखो, इतना ही कलर था, पिंक कलर. ये थोड़ा स्प्रेड हुआ इधर, ये और थोड़ा स्प्रेड हुआ और कम्प्लीटली स्प्रेड हो चुका है. क्वेश्चन डी, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन डेली लाइफ. गिव है ये. ओके, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन डेली लाइफ, दैट इज स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम. These were your diagram based question, 10 questions. So thank you. I will also give case study based question in the next video, and I will attach the link of that video in this video in the description box. Please do subscribe to my channel Class Excellence for more conceptual videos, amazing notes for your exam preparation. All the best. Thank you. Subscribe to Class Excellence.